Hello my dear students, this is your guide and mentor Ms. Swati Chawla, PGT Computer Science. I welcome you all on my YouTube channel. In our previous video, we have covered the introduction of functions, type of functions, how to create a user-defined function and जो उसके काफी variations होते हैं, functions returning values, can a function return multiple values, these all concepts we have covered in our previous video. I hope you have watched that video also. If not, I will provide you the link of that video in my description also. In this video, we are going to discuss the passing parameters. Means जब हम function को call करते हैं तो किस type से हम arguments को pass करते हैं, कितनी types के होते हैं. Generally, we are having 4 types of arguments: positional arguments, default, keyword, and variable length arguments. But in your course, variable length arguments are not there, so we will cover only 3. Positional arguments, default arguments and keyword arguments, right? But अगर आप अपना curriculum देखोगे तो in that only positional and default arguments are mentioned. But keyword arguments are also very important. ठीक है, इसका concept भी आना चाहिए. So we will cover these 3 arguments in this video, right? So before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now, let's start our today's video. Now see beta, इन सब arguments को discuss करने से पहले, let's quickly make a program to find the सिंपल इंटरेस्ट, राइट? अगर वो बनाएंगे ना प्रोग्राम आपको अच्छे से आ जाएगा, तो ये सारे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, राइट? ओके. सो द व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन विद नेम, लेट्स सपोज सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन हियर आई एम पासिंग 3. ठीक है, these are your formal arguments, right? अब confuse नहीं होना. Here I am printing the values of the variables that I will receive. Let me write it here quickly. Principal. Then let's suppose rate of interest. Then time. And what is the formula of simple interest? Principal into rate into time divided by 100, right? And this function will return the value of simple interest. And here I am calling this function. Now this is my function call statement. ठीक है? Now what I am trying to do, यहाँ पर हम value ले लेते हैं बेटा. Let's suppose principal equals to 5000, rate of interest equals to, let's suppose 5, and time is 10. तो अब यहाँ पर मुझे ये वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी. These are your actual arguments. ठीक है, भूलना नहीं. Principal, rate and time. These are my actual parameters and these are my formal parameters, right? Now how it will work? This is my function definition part, right? अब यहाँ पर हमने 3 जो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, उनको वैल्यू भी असाइन कर दी. नाउ दिस इज माय फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज पास कर दी, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. नाउ हाउ इट विल एग्जीक्यूट? फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, राइट? उसके बाद हमारे पास सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड वैल्यू विल बी पास टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट. इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा. तो प्रिंसिपल में वैल्यू आ जाएगी बच्चों, रेट में आ जाएगी, टाइम में आ जाएगी. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस. इतना आप सबको पता है? तो एज यू कैन सी प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. ठीक है, अब कैन वी डू वन मोर थिंग. यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रिटर्न कराई है. दैट मीन्स आई हैव टू टेक वन वेरिएबल एंड लेट्स सपोज विद नेम SI. ठीक है, सेम भी ले सकते हैं, नो इश्यू. एंड हियर आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड देन कोमा SI, राइट? चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं.
तो एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 एंड टाइम 10 एंड दिस इज माय फाइनल वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इतना आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है। अब आपको एक चीज बताएं, आपने जो अब तक पढ़ा दीज आर योर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो नोन एज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड मींस मैंडेटरी, वी कैन नॉट स्किप द वैल्यूज, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जितने हमारे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतने ही हमारे पास फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, यही चीज पढ़ी है। इफ वी आर हैविंग 3 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स देन वी मस्ट हैव 3 फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। किसके केस में बेटा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के केस में, राइट। एंड फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड वैल्यू विल बी पास टू सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड वैल्यू विल बी पास टू थर्ड आर्ग्यूमेंट। अगर मैं यहाँ से कोई एक वैल्यू को स्किप कर देती, ठीक है। अब नाउ वी आर हैविंग 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फॉर्मल में हमने यहाँ पर कितने लिए बच्चों, 2। तो नाउ व्हाट इट विल डू, it will generate the error. Obviously it takes 2 positional arguments but 3 were given, ठीक है। कि यहाँ पर हमने दिए तो 3 हैं but it is receiving only 2. तो that means ये जो हमने एग्जाम्पल अभी करा है किसका है, ये positional arguments का। Now see this, positional arguments are arguments passed to a function in correct positional order. That means first argument will be passed to first, second will be passed to the second, इस तरीके से। If we will change the position of this arguments ना, तो obviously my result will get affected, ठीक है। जहाँ पर हम multiplication कर रहे हैं वहाँ इतने इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Let's suppose if I am subtracting one value या हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डेफिनेटली इसका इफेक्ट रहेगा। Now if we change the order, मीन्स जिस ऑर्डर में हम लोग वैल्यूज को पास करें उसको चेंज कर दें, तो then the result will be changed obviously. If we change the number of arguments passed, तो then it will generate an error. ये भी हमने अभी करा। When the function call statement must match the number and order of arguments as defined in the function definition, this is called as my positional or required argument matching, right? That means if we are having 5 or 2 number of arguments in my function call statement, तो जो आपके corresponding function definition part है उसमें भी उतने number of arguments होने चाहिए। Now see this example, same जो भी हमने किया, right? I don't think इसको explain करने की जरूरत है। First value will be passed to first, means इस principal की value किस में आ जाएगी बच्चे, P में, rate की value आ जाएगी R में, and then this time इसकी value आ जाएगी बेटा T में, right? तो ये आपका simple interest calculate हो गया, ये वैल्यूज पास हो, ठीक है। नाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस की वर्ड डिफॉल्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, जब एरर जनरेट हो रहा था बच्चों, यहाँ पर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए थे, ठीक है। इसको तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की ही बात करूं, हियर आई एम पासिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, राइट, बट यहाँ पर मैं 3 पास कर रही हूँ। अब क्या होगा, ऑब्वियसली अभी भी एरर जनरेट करेगा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट T, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा ये आर्ग्यूमेंट है ये यहाँ पर मिसिंग है। बट अब सपोज करो बच्चों, हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जनरली कब यूज करते हैं कि मेरे किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है, हमेशा फिक्स्ड रह रही, ऑलमोस्ट हमेशा नहीं तो इन 90% केसेस। तो व्हाई शुड आई टेक दिस आर्ग्यूमेंट अगेन एंड अगेन, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अब उसके लिए क्या है बेटा, डिफॉल्ट वैल्यू जब हम सेट करेंगे तो हम कहाँ पर सेट करते हैं बच्चों, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में। दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन पार्ट, जो आपका ये वाला आर्ग्यूमेंट है बेटा, पैरामीटर T, हियर वी कैन असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब डिफॉल्ट वैल्यू के केस में क्या होगा, व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन, इफ वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड आर्ग्यूमेंट, तो देन दैट वैल्यू विल बी कंसीडर, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू विल बी कंसीडर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम T की वैल्यू डिफॉल्ट क्या सेट कर देते हैं, 2, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 एंड टाइम 2 प्रिंट होगा, 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, राइट। लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। नाउ सी दिस टाइम हमारा कितना कंसीडर हुआ बेटा, 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस टाइम की वैल्यू पास कर रही हूँ, दैट मीन्स क्या पास कर रही हूँ, 10, तो नाउ दिस डिफॉल्ट वैल्यू विल नॉट बी कंसीडर,
Now it will override this default value. The actual value that we are passing, it will be considered. So that means according to value of time equals to 10, it will get executed. Right? ये concept clear हो गया. Now let's suppose मुझे क्या करना है, rate of interest की default value देनी है. क्या करें? Time की default value नहीं देनी. Let me erase this. Rate of interest क्या मुझे default value set करनी है. Let's suppose 6. तो that means मुझे यहाँ से इसको erase करना पड़ेगा. ठीक है. अब will it execute? हमने तो जैसे टाइम के टाइम पर किया था सेम वैसे ही किया. ठीक है. हमने प्रिंसिपल की वैल्यू पास कर दी, टाइम की वैल्यू पास कर दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेनी चाहिए उसको 6. नाउ लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. अब तो एरर जनरेट हो गया. ठीक है. नाउ सी दिस एरर, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. अब मैम इसका मतलब क्या है? अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें बेटा तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू दोगे वो ऑलवेज आपका राइट साइड पर होगा. मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं तब तक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकती जब तक मेरे पास टाइम में डिफॉल्ट वैल्यू ना हो. तो मीन्स योर default arguments must be at the rightmost side. So we can shift this, no issue, control X and then control V. अब देखो यहाँ पर positional argument follow होगा. First value will be passed to first argument, second value will be passed to second argument. And here, ठीक है, default value will get considered. Now let me show you the execution of this. Now principal की value बेटा 5000, कोई दिक्कत नहीं. टाइम की वैल्यू पास की हमने 10, किस में आ गई? टी में. राइट? 10. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफॉल्ट वैल्यू व्हाट इट हैज टेकन? 6. दैट मींस डिफॉल्ट वैल्यू. राइट? तो अब हम एक से ज्यादा कितने डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. राइट? सपोज आई एम गिविंग द वैल्यू 5. ठीक है. टाइम की वैल्यू 5 दे दी. अब इसको एग्जीक्यूट करो. प्रिंसिपल की वैल्यू 5000. ठीक है. सेकेंड दिस टाइम हम पास कर रहे हैं वैल्यू, दैट मींस टाइम की वैल्यू क्या कंसीडर होगी? 10. अगर यहाँ से स्किप कर दें कोई दिक्कत नहीं. टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा बेटा? वो 5. राइट? इसी तरीके से हम तीनों में डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं बेटा. प्रिंसिपल की क्या सेट कर दी? 1000. इसको हटा देते हैं. ठीक है. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ सी दिस. राइट? अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं. आई होप दिस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो क्लियर नाउ. Now see the definition. Default argument is an argument that assumes a default value if it is not provided in the function call for that argument. अब default argument जो means default value हम देते हैं वो कहाँ पर देते हैं? function header में. ठीक है. और skip कहाँ पर करते हैं? in the function call statement. तो assumes a default value of value is not provided. If you are not passing any value, so then only default values will be considered. If you pass any value explicitly, so then obviously that value will be considered. Now say this, जो हमारा error generate हुआ था, known default arguments cannot follow default arguments. Means it's not possible कि first हमने default argument की value set कर दी, after that मेरे पास non default arguments है. No. ठीक है. Default arguments must be at the rightmost side. In a function header means function definition part. Any parameter cannot have a default value until and unless all parameters appearing on its right side have their default values. अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ पर रेट में डिफॉल्ट वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक मेरे पास इसके राइट मोस्ट जो आर्ग्यूमेंट है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं. राइट? नाउ सी द एग्जाम्पल, द सेम वन. This t equals to 3 is the default value. So this is my function call statement. If I will skip this value, means if I will not pass the value of time, यहाँ पर हमने comment कर दिया, so it will consider the default value of t, that is 3. If we pass the value explicitly, so then obviously that value will be accepted. ठीक है? During function call, value of time is not passed, so it will consider default value of t, that is 3. ठीक है? अब इसमें एक पॉइंट ध्यान से समझो. दिस इज माई फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. ठीक है. अगर क्वेश्चन आता है कि हम कौन से टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को स्किप करते हैं, या इवन अगर आप क्वेश्चन नहीं भी आते इसको थ्योरेटिकली लिख रहे हो,
तो इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट वी कैन स्किप द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बट जब हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं दैट विल बी इन द फंक्शन हेडर पार्ट। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, राइट। नाउ दिस इज द आउटपुट और डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर t की क्या आई है बेटा 3, राइट। नाउ सी दिस r इक्वल्स टू 5, यहाँ पर हमने पास नहीं किया प्रिंसिपल एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हियर द एरर विल गेट जनरेटेड नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा है बेटा मेरा यहाँ पर t follows default argument, मींस डिफॉल्ट के बाद आ गया, सो दिस इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। तो r को हमें कहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा राइट मोस्ट साइड पर, ठीक है। तो इट विल नॉट वर्क, इट विल जनरेट द एरर। तो हमने कहां पर शिफ्ट कर दिया r को राइट मोस्ट साइड पर, तो देन इट विल एग्जीक्यूट परफेक्टली फाइन। द आर्ग्यूमेंट हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू मस्ट बी एट द राइट मोस्ट साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज माय कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। Now before discussing keyword arguments, default argument में आपको कुछ ऐसा लगा जो means like उसकी disadvantage? In positional arguments as well as in default arguments, we cannot change the position of the arguments. Means हम उसका order नहीं change कर सकते, ठीक है। तो that we can do in the keyword arguments. Now read this. The default argument gives flexibility to specify default value for a parameter so that it can be skipped in the function call if needed. कहाँ पर skip हो सकती है वो function call statement में. However, still we cannot change the order of arguments in function call. Function call में हम order of arguments को change नहीं कर सकते, right? This is about default arguments. Now, to get control and flexibility over the values sent as arguments, कौन से arguments हैं बच्चे हमारे पास? Keyword arguments. Now see this, the very important point, right? Most important point. This allows to call functions with arguments in any order using name of the arguments. Means we can call the we can pass the values in any order. ठीक है, इसको दोबारा से रीड आउट करो, इसमें 2 पॉइंट्स हैं बेटा। दिस अलाउस टू कॉल फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर यूजिंग द नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। एक पॉइंट तो क्या निकल कर आया बेटा? वी कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर। सेकेंड, यूजिंग द नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है यूजिंग द नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स? नाउ सी दिस बेटा, दिस इज माई फंक्शन of to calculate the simple interest, right? अब इसमें इसको एक बार हटा देते हैं, ये ऐसे ही देख लो। अब जो हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं बेटा वो कहाँ पर पास करते हैं? इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट क्या लिया था? प्रिंसिपल की वैल्यू 5000, लेट सपोज हमने यहाँ से पास कर दी। अब हम वैल्यूज पास करें तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पास करा? टाइम, लेट सपोज 5 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स सपोज 6, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करें बेटा, एरर जनरेट हो गया, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब फर्स्ट पॉइंट तो हमने कवर कर दिया, दैट मीन्स वी कैन पास द आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर हम रेट भी लिख सकते हैं, एनी ऑर्डर है तो। और सेकेंड पॉइंट क्या था? यूजिंग आर्ग्यूमेंट नेम्स, यूजिंग नेम्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। व्हाट डज दिस मीन? कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल लिख रही हूँ तो आई हैव टू राइट प्रिंसिपल हियर। इफ आई एम राइटिंग रेट हियर तो आई हैव टू राइट रेट हियर। दोनों जगह पर उनके नेम्स क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, ठीक है। तो कैन वी कमेंट दिस पार्ट, राइट? सो नाउ लेट्स सपोज हियर आई एम राइटिंग P R एंड देन T, ठीक है। नाउ सी दिस P 5000 अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह वर्क नहीं करेगा कि फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? 5 एंड टाइम में कौन सी आएगी? 6। नाउ सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो नोन एज द नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स? बिकॉज जब हम आर्ग्यूमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर पास करें तो वी आर पासिंग यूजिंग द नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन कॉल में और फंक्शन डेफिनेशन में, उन दोनों में आर्ग्यूमेंट के नेम्स क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, ठीक है। नाउ सी दिस एग्जांपल,
Here also we are passing the arguments in any order. Now see this. Value of P will be transferred. Then R. Value of R will be transferred to this. And then T, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा T में. ठीक है. अब क्या मैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को कंबाइन कर सकती हूँ एक साथ? बिल्कुल कर सकते हैं. बट उसके लिए मेरे पास कुछ बढ़िया से रूल्स हैं. Let us first understand those. ये रूल्स क्या रहे हैं? The first point is an argument list must first contain positional arguments followed by keyword arguments. मीन्स सबसे पहले अगर मेरे पास किसी भी फंक्शन में तीनों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स है, पोजिशनल भी, कीवर्ड भी और डिफॉल्ट भी, तो सबसे पहले हम कौन से देंगे? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. उसके बाद मेरे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. क्लियर? What does this mean? Keyword arguments should be taken from the required arguments. कि जो हमारे required arguments है उन्हीं में से ही हम क्या सेट करें किसी को? Keyword argument. उन्हीं की values पास कर रहे हैं. Third point, you cannot specify a value for an argument more than once. कि हम किसी एक argument में value एक से ज्यादा बार पास नहीं कर सकते. ठीक है. जब हम rules को combine करेंगे तो suppose if I am passing the value of setting the value of P as default value 1000, तो ऐसा ना हो कि कोई और मैं रूल अप्लाई करूं तो प्रिंसिपल की वैल्यू मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू 5000 पास कर रही. नो. ठीक है. वी कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस. दीज आर द मेन पॉइंट्स इफ यू वांट टू कंबाइन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. नाउ सी दिस. इससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे. This is my function definition part. Interest, principal, CC. Again an argument. Time equals to 2, rate equals to 0.09. And what I am returning? Principal into time into rate. ठीक है. अब now this function definition part. This is having how many number of arguments? 4 arguments. Out of those 4 arguments, 2 are having the default value. That means time and rate are having the default value. अब principal और CC है. इसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट की है. ठीक है. नाउ सी दिस. द फर्स्ट पार्ट. दिस इज माय फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. नाउ एट लेफ्ट मोस्ट साइड वेरियस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स आर देयर. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर दीज आर लीगल और इलीगल. इफ दीज आर इनवैलिड तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. ठीक है. अब नाउ सी दिस. प्रिंसिपल में हमने वैल्यू पास कर दी 3000. ये किस टाइप का आर्ग्यूमेंट हुआ बेटा? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल में वैल्यू आ गई. एंड सीसी में वैल्यू दे दी 5 कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में थ्रू. दोनों आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू आ गई. नाउ टाइम इक्वल्स टू 2 एंड रेट इक्वल्स टू 0.09. बोथ आर हैविंग द डिफॉल्ट वैल्यू. कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. तो अब यहाँ पर दिस इज माय वैलिड स्टेटमेंट और यू कैन से लीगल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. ठीक है. रीजन नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइडेड एज नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स. मीन्स नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंसिपल एंड द सीसी, इनकी वैल्यूज हमने किसके थ्रू प्रोवाइड की है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू. नाउ सी द सेकंड स्टेटमेंट फंक्शन कॉल. रेट में हमने वैल्यू पास कर दी 0.12. नाउ दैट मींस डिफॉल्ट वैल्यू विल नॉट गेट कंसीडर, राइट? 0.12 इट विल एक्सेप्ट. प्रिंसिपल में हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू पास कर दी 5000 एंड सीसी में भी पास कर दी. नाउ सी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर. मींस इन एनी ऑर्डर वी कैन पास द वैल्यूज. किसकी वैल्यू पास नहीं हुई बेटा? टाइम की. नो प्रॉब्लम. Time is having the default value. ठीक है. तो this is also your valid or you can say legal function call statement. Keyword arguments can be used in any order and for the argument skip जिसकी वैल्यू हमने नहीं दी, that is having the default value. Now see this third statement. Interest CC की वैल्यू हमने पास की बच्चे 4. Rate of interest में we have passed the value 0.12 and in principal we have passed the value. Again we have passed the value of time. Sorry, we have skipped the value of time and it is having the default value. ठीक है. So यहाँ पर भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is also my legal function call statement. Now see this the fourth statement. 5000. अब नहीं लिखा ना प्रिंसिपल है, टाइम है, क्या है. बट सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी बच्चों? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. सो दैट मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू है 5000. 3
second value will be passed to second argument. That means in CC the value is 3. Now this rate, it is having value 0.05. Time की skip कर दे तो default value it will take. This is also my legal statement. Positional arguments before keyword arguments. ठीक है, मीन्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की प्रायोरिटी आपने हमेशा ज्यादा रखनी है. सबसे पहले अगर आपके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो यू हैव टू पास द वैल्यूज ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट द वेरी फर्स्ट. नाउ सी द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट. अब रेट की वैल्यू हमने पास कर दी 0.05. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. बट नाउ सी दीज टू वैल्यूज 5000 एंड 3. व्हाट आर दीज नाउ? ठीक है, अब यहाँ पर हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं यूज किया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो नाउ दिस इज माय इलीगल स्टेटमेंट. रीजन बीइंग दैट ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इफ वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स तो वो आप सबसे पहले पास करोगे, आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करेंगे उसे. राइट, नाउ सी दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट. इंटरेस्ट 5000, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस 5000 किस में आ गया बेटा? प्रिंसिपल में. ठीक है, नाउ सी दिस यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वी आर अगेन पासिंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल 300. सो अगेन दिस इज माय इलीगल स्टेटमेंट. रीजन बीइंग दैट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट कंटेन मोर देन वन वैल्यू. हम एक से ज्यादा वैल्यूज पास नहीं कर सकते. ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइडेड फॉर प्रिंसिपल, once as positional argument and second time as a keyword argument. Now next statement, interest 5000. First value will be passed to first argument. This is my positional argument, right? अब मैं वैल्यू पास कर रही हूँ कंप्लीट आर्ग्यूमेंट स्पेलिंग लिख करके प्रिंसिपल, और वैल्यू पास की बेटा 300. ठीक है, अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का क्या रूल था? यूजिंग सेम नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. दैट मीन्स इफ आई एम राइटिंग प्रिंसिपल इन कंप्लीट हियर तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो माई इलीगल स्टेटमेंट. रीजन बीइंग दैट अनडिफाइंड नेम यूज्ड प्रिंसिपल इज नॉट अ पैरामीटर. यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल डिफाइन नहीं. नाउ सी दिस द लास्ट वन, इंटरेस्ट 500. इंटरेस्ट द नेम ऑफ द फंक्शन. अब 500 किस में पास हो जाएगी बेटा? PRIN आर्ग्यूमेंट में, पैरामीटर में. That means first value will be passed to first argument. Time equals to t, okay. Rate equals to 0.05, okay. Now see this argument बेटा, parameter CC. ठीक है, अब CC हमने यहाँ से नीचे से वैल्यू नहीं पास की ना function call statement. And here in function definition part it is not having a default value also. तो CC के पास तो वैल्यू पहुंची ही नहीं. तो again this is also my illegal or invalid function call statement. Reason being that a required argument CC is missing. हमने उसकी कोई भी वैल्यू पास नहीं की. So that's all about the type of arguments. I hope all these concepts are crystal clear now. Clear तो हो नहीं थी, आपके स्वाति मैम ने जो एक्सप्लेन किए. But still if you are having any doubt you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.